तू दुबई के लिए निकल, मैं यहाँ सब संभालूंगा। These people are innocent, man. These students are. Hmm. Oh, you know, Hmm. Raymond Beckett sponsored his education Hmm. in this medical college. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जहर निकल गया, ईरानी पासपोर्ट पे 2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाए। तुम साले बलूच इतने सालों से पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हो, आज मैं तुम्हारी काली रूहों को अपनी कारतूस से आजाद कर दूंगा। They are totally innocent, man. Excuse me, sir. Can I have your passport? Boarding ticket coming from Yeah, I can Karachi. see that. What happened? Officer! It's a mistake! It's a mistake! ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? I did not understand. Let us see. ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು, ಇವನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹೌದೌದು, ಬಟ್ ವೈ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಡ್ ಆತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ದುಬೈಲಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆತಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೋ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್? ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ದುಬೈಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಜೈಲ್. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಯಾರಿ. ಮಾವ ಅಳಿಯ ಸೇರಿ ತೆಗ್ದಿಕ್ಕಿ ಹತ್ರ ಅದೇ ಗೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ पास्ट। पिछले दिनों हुए एक सनसनीखेज एनकाउंटर में एसपी चौधरी असलम ने बलोच यूनाइटेड फोर्स के 4 दहशतगर्दों को पसानी जंगलों में अपनी जान पर खेलकर मार गिराया। हमले में एलटीएफ का एक फौजी भी जख्मी। उस एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी के लिए आज सदर आकिब अली जरवारी ने एसपी चौधरी असलम को तमगा इम्तियाज से नवाजा। बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। इस बार इलेक्शन में बीएपी को सबसे जबरदस्त टक्कर कौन देने वाला है? नवाब शफीक, मुस्लिम मूवमेंट पार्टी, एमएमपी। तो आज से लियारी एमएमपी की हिमायती बनेगी। मेरी नवाब शफीक के साथ मीटिंग कराइए। पता है ना, बेगैरती जहां पर खत्म होती है वहां से साले गंजे की शुरू होती है। अब तू मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से जाके हाथ मिलाएगा? सिर्फ मैं नहीं, आप भी। अगर आपको पावर में रहना है तो अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के पाठ सूंघूंगा? हमजा, थोड़ा सब्र कर। आपको भी डूबना है तो शौक से जुड़े रहिए इनके साथ। सियासी तख्त पलटने वाला है। आप इलेक्शन फंडिंग तैयार रखिए, बाकी मैं संभालूंगा।
he is playing a very safe game and making them believe that he is the guy. So they'll follow him. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್. ಓ ದಿಟ್ಟೋ ಗುರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ರಪ್ಪ ಇವನ್ನ? He looks very ಅವನು similar. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ CM ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ಅವನ. PM, ಹಾ. no. Before that one. PM. ಓಕೆ. Dude had nothing when he entered. Now got everything. Power, money, everything. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್, ಪೋಸ್ ಸೇಮ್, ಫ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್. ಪ್ಯೂರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಲಡ್. ಹೌದೌದೌದು. ಅಲ್ಲೇ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ both are at the same level. So ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೀಗ ಇಬ್ರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ he'll be, it is a more of a advantage. इलेक्शन के बाद हमारी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के सामने आई है. अब हमारा ये फर्ज बनता है, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಹಮಾನ್ ಡಕೈತ್ ಹಿಂಗೆ ವಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. जरवारी साहब जैसे नापाक लोगों से आजाद कराएं. और जब तक हमारे साथ जमील जमाली और हमजा अली मजारी भाई जैसे लोग हैं, हम अपने इस मुकद्दस मकाम में कामयाब होंगे. नवाब शफीक पाकिस्तान के राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं. स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जबरदस्त जीत को कराची के अंडरवर्ल्ड माफिया के समर्थन ने सुनिश्चित की है. पूरी पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत की तो हमेशा से गवाह थी. UTPAP का साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए MMP के साथ इत्तेहाद कर दिया. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ओह, शपथ लेता हूं कि 2014 विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा. तूने तो बोला था इस बार भी तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, हैं? सफिया, अब Which जरा election? मेरे साथ जाओ, मैं बात करता हूं. The one happened in India or one happening in Pakistan? What? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. अमेरिकियों के इवरिगे डॉलर PAP भर-भर विन के हाकिदिತ್ತಲ್ಲ. इंडिया के NGOs, मीडिया, MMP विन. सोशलिस्ट, यूनिवर्सिटीज सबको भिजवा रहे थे, ठेले बना रहे थे, नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए. साला निकम्मा पड़वा कहेगा. वैसे अच्छा है, तेरी उस बेखबर बेटी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मर्दाना कमजोरी वाला बाप इतना बेकुव्वत था कि एक बेटा तक पैदा नहीं कर सका. खस्सी साला. Dude is abusing him in मेजर इकबाल, every possible बाप way. हूं मैं तेरा बाप. कत्तर की जंग में 1000 बांग्लादेशी औरतों की आबरू खाई है ब्रिगेडियर जहांगीर ने, और 1000 नस्लें बांग्लादेश की जमीन पे आज भी गांड हिलाए घूम रही होंगी. उनमें से एक पिल्ला भी अगर उठा के ले आता ना, उसको पालता पोसता तो तेरे से अच्छा बेटा साबित होता. गंडू कहीं का. Dude is bashing him. चिराग इकबाल, बात करनी है तेरे से.
बाल जी बड़े साहब, ये सब खैरियत, बताइए। ठीक है। हाँ, शायद इस वक्त वो बलूचिस्तान में है, मैं देखता हूँ। इंशाल्लाह। Oh, Bade Saab wants to meet Hamza. मे बी. This is one type of a celebration there, I think, in Arab countries and all. Sherek Baloch. अस्सलामुअलैकुम हमजा, मेरे वीरे। फौरी तौर पे बुलाया, सब खैरियत? तो मसला हो गया? मसला तो है नहीं है, आपके खैर भरे ज़लज़लों की वजह से आप बड़े साहब की नजर में आ चुके हैं। आपसे बड़े कौन से साहब पैदा हो गए? आप तो ऐसा है कि माई बाप है। अरे हम माए बापों के भी बाप होते हैं, जिन्हें ऐसा है बकायदा अपने पलकों पर रखती है। चले जाएगा, आजा। ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ISI ಮಿಲಿಟರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಡೆ ಸಾಹಬ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಇದು? ಓ, दाऊद इब्राहिम। ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है, वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ बड़े और साहब बड़े- यूं ने ना. हाँ, अगर और ढील दी तो इतने सालों से बसाया हुआ हमारा सारा निजाम तबाह हो जाएगा। दिल्ली की हुकूमत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कश्मीर का हमारा मकसद जारी रहेगा। फिलहाल यूपी के इलेक्शंस की तैयारी करो। 11,000 करोड़ फर्जी नोट यूपी निकलने के लिए तैयार है। मेरी वहाँ आतिफ अहमद से बात हो गई है, वो नेपाल के याकूब अंसारी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेगा। 60,000 करोड़ और लगेंगे। 60,000 करोड़? कितना पैसा उठाया है तुमने मुझसे? 60,000 करोड़ और हिंदुस्तान पहुंचवा, फिर तेरा मेरा हिसाब बराबर। बुला रहे? बच्चा है जी मेरा। पूरी लियारी संभाल रखी है इसने। दामाद है मेरा, दामाद। अच्छा बेटा, दाऊद भाई, दाऊद इब्राहिम, बम्बई वाले। सलाम दाऊद भाई। जब भी कोई नया पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड की गद्दी संभालता है, उसे मुस्लिम कौम के लिए पहले अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। अब तुम्हारी बारी है। एक अरसे से हम चाह रहे हैं कि पंजाब की आग को दोबारा हवा दी जाए। पंजाब में कत्लो गारत करने से मुस्लिम कौम की वफादारी कैसे साबित होगी? अंगार में झुलसता हिंदुस्तान हमारी कौम को सलामत और धंधे को साजगार रखता है, और उसके लिए पंजाब के फितनों से लेकर कश्मीर के मुजाहिदीन तक, केरला की PFI से लेकर नक्सलियों तक, सबको तैयार करने की जिम्मेदारी ISI ने हमें दी है। अमरजीत, जल्दी ही हमारे लोग उस पार के पंजाब से आ रहे हैं, भारी ड्रग्स लेने के लिए। क्यों? ड्रग्स तो वहां भी मिलते हैं। हाँ, महंगे मिलते हैं। कराची से सस्ते ड्रग्स लेकर
इंडिया में अच्छे दामों में बेचकर जो भी मुनाफा आता है उससे अमेरिकी रूसी बंदूकें बेहतरीन क्वांटिटी में खरीदने का प्लान है। वाह वाह वाह, मतलब इंडिया के पैसे से ही इंडिया के खिलाफ जिहाद का सामान तैयार करो और साथ में वहां के बच्चे अफीम की बन जाएं। ये तो मतलब बोनस ही बोनस है ना? मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। बादशाह बनने से ज्यादा मुश्किल है बादशाह बने रहना। इस दुनिया में हम जैसों को हमारी मर्जी के मुताबिक धंधे का इंतखाब करना नसीब नहीं होता। तो हो जाएगा दाऊद भाई, तो कोई मसला ही नहीं है, कर लेगा ना। और सब लोग हैं, इकबाल भाई हैं, जावेद है। हेलो, मैं अपने आप को भूल ही। जवाब मुझे लड़के से चाहिए। बिल्कुल मेरी तरह घूरता है, लंबा जाएगा। अगली बार दाऊद को कब मिल रहा है? शायद डील होने के बाद। मुझे डी मिथाइल मर्क्यूरी चाहिए। डीप रूटेड मैन। मैं इंतजाम करता हूँ। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके उरी में भारतीय आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है, जहां 17 जवानों को हलाक कर दिया गया। हिंदुस्तानी जराए इस वाकये को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्जामातों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बिना सबूतों के हमारे मुल्क पर इल्जाम लगाना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। Who is this? Is he his brother-in-law? Huh? Maybe. ಹೌದು. Oh no. मेरा बचपन का दोस्त है जी जसकीरत। यार तगड़ा रहे यार। ಅವ್ನು ಮುಂಚೆಂದನು ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. हमजा पाजी, ये हैं बलविंदर संधू जी। हेलो जी। और ये सुनप्रीत सिंह, प्यार से इन्हें सनी डीवीडी कहते हैं। और ये है गुरबाज सिंह, प्यार से सारे इन्हों पिंदा पिंदा कहते हैं। और भाई ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी। ಅವನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಆದಳ ಹಂಗಾರೆ. कितना टाइम लगेगा? और करीबन आधा घंटा। हवा थोड़ा छेती चला ला यार। कहाँ से हो पिंदा साहब? पठानकोट पता? पंजाब जो आजाद हो जाएगा ना, ले चलूंगा आपको। माल की लिस्ट ಪಂಜಾಬ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತಂತ ಸಿ भाई, माल घैंट होवे। ओ इतना माल? पूरा मुल्क नशेड़ी बनाना है क्या? भाजी इन्ना पंजाब के 4.5 जिले जी खत्म हो जाए कोई। लो आ गए हमारे पुराने दोस्त जायद खुन। ಓ ಇವನ ತಾನೆ? he was ಕಂದಹಾರ್ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಅಲ್ವಾ ಇದು? सच्चा पाकिस्तान। ಹೌದಾ? मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और ये दुकान भी नहीं की। क्यों मजाक कर रहे हैं इकबाल भाई? आप ही की दुकान है, हम तो मुलाजिम हैं आपके। ये नहीं का कराया हुआ है सब। अरे बड़े खास हैं हमारे। वैसे मियाँ एक जमाने में जहूर मिस्त्री के नाम से मशहूर थे। ಸಿ ಜೌರ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕಂದಹಾರ್ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. पड़ोस में ही रहते हैं हम। ಸಿ दूधे भर का जोर लगा लो। they change the name and identity also.
चलिए शुरू करते हैं। ड्रग एक्सपर्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट। खरगोश 70 किलो, लॉलीपॉप 120 किलो, मंदाग्नि 100 किलो। ಟೆಸ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಇವನು ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈಗ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. 10 किलो दुबई डैशिंग 90 किलो, चीका पाउडर 90 ರಿಗ್ರೆಷನ್ किलो। ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. बल्क में बॉर्डर पर जाएगा कैसे? भाई उसी में तो खासियत हमारी। बॉर्डर फोर्स की तो सब जांच पड़ताल होती होगी। वो बाप दादा बिजनेस है, आपके पहले भी काम चलाया है। मजाड़ा साड़ी कोई चरसी पुड़िया भी फड़ी गई हो। और भाई अंडरग्राउंड टनल है, नेपाल बांग्लादेश के लड़के हैं, आजकल तो साले ड्रोन भी है गया। और यूपी तो बकर खाने हैं, कश्मीर तो हमदर्द है। इंटरनेट पर चक्की फिरते हैं भाई। एसपी असलम आज रात ही सारा सामान हमजा के घर तक पहुंचा देंगे और आपसे तय की गई रकम भी आपको रात तक मिल जाएगी। दे देना। मेरे एसपी मार जावा शॉल बड़ी बढ़िया पहनी है, लगता शेर को ठंड लग रही है। हमजा एसपी साहब क्या लेंगे सर इसकी? मैं अभी रहा। उससे बाद मुलाकात हो गई। पक्का नहीं कुछ आया? जब से आया पूरा नशे में। मैं नजर रखता हूँ। किस पे नजर रख रहे हो आलम मियां? मेहमानों पे। अच्छा जमीर साहब, आपके लिए मैं आफत अनार बना दूं? नहीं यार, आजकल मैं कुछ थोड़ा मीठा कम कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो। एक काम करो, एक चीकू शेक बना दो बढ़िया सा। शुगर हाई चल रहा है। बढ़िया। जमील साहब, एक बात बताना भूल गया। 18 तारीख को उजैर दुबई से पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट होने वाला है। आखिरकार डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ऑर्डर्स मिल गए। एसपी, तू अपनी कब्र खोद रहा है। सुना है कि उजैर ने कसम खाई है तेरा सर काट के लियारी कब्रिस्तान के गेट पे लटकाने की। एयरपोर्ट से जेल कभी नहीं पहुंचेगा, रास्ते में हम उसे मेरी शफीक साहब से बात हो गई है। भाई बाथरूम कितने है? यहाँ से आप एंटर करें, पहला राइट। ಏನೇನೋ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ. ಹೌದು. भाई आज चल पड़ो, गुम जाना मैंने इतने नशे में पहन। So what's the plan here? ಇವನ್ ತೆಗೀತ ಅನ್ಸತ್. पिंदा. भाई घर साला बहुत कैंट बनाया यार। शुक्रिया यार। कब से रह रहे हो उधर? यही कुछ 2-2.5 साल। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? ಬಾಯ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅವ್ನ್ ಗುರ್ತ ಸಿಗ್ದವ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಇವನ್ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಯಂಗ್, ಇವಾಗ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿ ಐ ಮೀನ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. याद नहीं आई तुझे जस्सी? ಅವನ್ ಗುರ್ತ ಅವನಿಗೂ ಅವ್ನ್ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. कब से इधर? पागला भैन थे यारा, बड़ा पाठ रखा सी तेरे मरन दा। मां दी याद नहीं आई तेनू? ओए कैसी है? ठीक है, जसलीन भी खुश है।
बच्चे हमारे 2। वाह दिस इज इमोशनल मैन. व्हाट? वो आतंकवादी बन गया मैं. क्या हाल कर रखा है. कैसे आया इधर? ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಯ ಅವ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. फांसी का डर था, किसी तरह बॉर्डर पार करके. मेरा फौजी जसकीर्त, साला झूठा फौजी जसकीर्त. मुआवजे के नाम पे हर महीने 30,000 रुपए आते तेरी माँ के अकाउंट में. साला केड़ा मुआवजा इतने साल चलता है. तब मुझे शक हुआ. आज सालिया तेनू इत्थे वेख के शक सच हो गया मेरा. ये डील छोड़ दे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई. हजारों जाने जाएंगे भाई, कुछ तो अपने देश के बारे में. केड़ा देश है? केड़ा देश? वो देश जिन्ने कदे सानू अपना सगा मन्निया ही नहीं. No, actually everybody accepted that. मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए वफादार हूँ. तू सालिया भैन दा यार जो अपनी माँ बहन को छोड़ के भाग आया, तू कितना वफादार है ओए? यार साला बिंदे मेरी बात सुन. बना ಅವನಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಓವರ್ಡೋಸ್ ಆ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು ಇವಾಗ. ಡ್ರಗ್ ಓವರ್ಡೋಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದೇನೋ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಹಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತ ಇವಾಗ? ಯಾರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾನೆ? Shit, bro. Oh, shit. Good. Then what was his plan actually? ಯಾರದ್ದು? If he didn't want to kill him, then ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀನ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು, ಇದನ್ ಬಿಡು, ಈ ಡೀಲ್ ತಕೊಂಡ್ಬೇಡ ಅಂದಿಕ್ಕೆ. ಅವಕ್ಕೇನ್ ತಂದ್ಕಂಡವ. ಮತ್ತೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟದವ ಈಗ? ಅವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಆತ ಇರ್ಲೇ ಅನ್ಕಂಡ್. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವನೇ ಕೇಂಡ್ ತಕೊಂಡದ್ದು. ಬಟ್ ಇವ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಲ್ಲ ಅವನು. ಅದೇ ಅಂತ ಅಂದೇಳಿ ಎಂತಪ್ಪ? What happened? What happened? Someone shot in the air. Who shot whom? That is the question now. बोल तो मारे इसको. कौन कौन लोग है तेरे साथ? बोल. कौन कौन है तेरे साथ? बोल साले, बोल. Who is this? Oh. ಅವನು ಅಂಕಲ್. बोल. बोल तो मारे इसको. Oh shit. ಈಗ ಎಂತ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ? हिंदुस्तानी एजेंट है ये हरामी. कौन कौन लोग है तेरे साथ? बोल.
ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹ್ಮ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಅದು ಎಂದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದೀಗ ಆಗಿರೋದನ್ನ. ये क्या किया? मेरे घर में घुस के मेरे मेहमान को मारेगा, मजा कैसी हरामजादे के? हमजाली मजारी का घर है ये। लाशें जला देना इनकी। ವಾಟ್ ಬಲೂಚ್. ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯೂಡ್. मजा आया। ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನ್ ಬಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾದ, ढोल वाले शुरू हो जाए। ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದವ ಎಂತಕಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಹಿ ನ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಸತ್ತೋದಳ್ಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲವ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಕಂಡಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ, ಇಫ್ ಈ ಡಸಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಲೋದಂತ. ಅದು ಇವ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೈ. ಎಂತ ಹಾ ಅದೇ ನೋ ನೋ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡೈ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಹೆಂಗ ಅವ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಅವ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ. ಬಟ್ ಇದು ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಯ್ತು ಇದು. ಸೊ ಅವನ್ನ ಅದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನೋಡ್ದ ಅವನು ಬಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೋಡ, ಯಾರಿಗೆ? ರಿಜ್ವಾನಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ರಿಜ್ವಾನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ he understood, he knew. कौन है? आलम। इसने पहचान लिया, मुझे बोल रहा था मार के सबको बता सकता हूँ, मैंने डील छोड़, इंजेक्शन जाने। तू निकल यहाँ से। मैं साफ करता हूँ, तू निकल। हम दिखा देंगे कि ये हादसा हो गया और ये ಇವ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ. तू निकल हमजा। ಕ್ರೇಜಿ ಮರೆಯ. तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमजा। तू बहुत अंदर तक घुस चुका है। हम में से जो भी आज पकड़ा जाएगा उसके साथ ये मुझसे भी बुरा बर्ताव करेंगे। मैं अपने हिस्से की जंग लड़ चुका हूँ, तुझे हम सब के हिस्से की जंग अभी लड़नी है। भाई, एक बरेली का पॉकेट मार आज अपने देश के लिए शहीद होगा, मुझसे मेरा ये हक मत छीन मेरे भाई। कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रख, मुझे अच्छा लगे। निकल जा मेरे भाई, निकल जा। He didn't get to know his side of story at the beginning. He said, I will tell you in when time comes. ಸಾಲ್ಟ್ ಟೀ ಕುಡಿತಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕುಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು. आलम के साथ ही जूस बेचता था, उसी ने रहमान से मिला है। मुझे तो शुरू से हमजा थोड़ा गड़बड़ी लगता है। तुझे शक है?
पहले क्यों नहीं बताया? घबरा मत। जब भी कभी शक हो तो तफ्तीश कर लेनी चाहिए। उससे नींद अच्छी आती है और हाजमा भी सही रहता है। हमजा की पहुंच बहुत ऊंची हो चुकी है। उसके खिलाफ वारंट तो कभी नहीं मिलेगा, तो इस घर की तलाशी नहीं ले पाएंगे। तू एक काम कर, आलम जूस सेंटर में छानबीन कर और खुद नहीं जाना। हमजा के लड़के लियारी में पहरा दिए बैठे रहते हैं। सज्जाद को भेजना। Oh, they got the doubt and they will start to investigate him. And what is she doing? ಇವಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ? ಇವಳು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಳೆಂತ ಕೋಯ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಓ ಓಕೆ, ಅವಳಿಗೂ ಡೌಟ್ ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬುಕ್ ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಈಗ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೇನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಸಿ Oh no. वाह